So in this problem based on apparent angle method, there is a change in a last stage only. We know that the plane problem is 3-step problem. How many steps are there in the plane problem? How many steps are there in a plane problem? Can you hear my voice? Yes, sir. How many stages are there in the plane problem? 6. 6 steps are there. Stage. Three stages, sir. 3 stage. Yes, absolutely correct. 3 stages are there. And when such kind of the apparent angle problem we need to face, we will have to solve it, or we will have to arrange that particular apparent angle in the last stage only. जो तीसरा स्टेज है, उस तीसरे स्टेज में हमें एपरेंट एंगल जो है वो एपरेंट एंगल वहां ड्रॉ करके फिर प्रोजेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है. नाउ देयर विल बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये प्रॉब्लम, दिया हुआ प्रॉब्लम एपरेंट एंगल का है या नहीं है, ये कैसे डिटेक्ट करना है. तो ये भी बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग. ओके, सो वी विल सॉल्व वन वेरी इजी प्रॉब्लम ऑफ द ट्रायंगल, and that particular thing will be understood by you people easily. Take the problem. An equilateral triangle, write down, an equilateral triangle of side 50 mm, of side 50 mm is lying in HP on its edge AB. An equilateral triangle of side 50 mm is lying in HP on its edge AB. The plane is inclined to HP by 45 degree, and the perpendicular passing through its corner which is in front of
side AB is inclined to VP by 30 degree. 30 degree. Complete the projection. Complete the projection. Carefully write down this problem. An equilateral triangle of side 50 mm is lying in HP on its edge AB. The plane is inclined to HP by 45 degree and perpendicular passing through its corner, which is in front of side AB, is inclined to VP by 30 degree. Complete the projection. Okay. So without any kind of the hesitation, what we will do first? We will first of all go by our method. तो हमारे मेथड में पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? Above XY or below. Once again, you Triangle. are Triangle. yes. So by telling and by solving n number of problems from last 1 week, we are still committing the mistake. First of all, you will have to decide the true shape, कि कौन सा shape हमें draw करना है, and that is nothing but the equilateral triangle. That is the first point. Everybody, you must note down it. Okay, कि पहले हमें decide करना है which diagram, which shape we will have to draw. Then a second thing. What is the second thing? Above XY and below. Where we will have to draw that particular diagram, whether in above XY line means in a front view or in below XY line means in a top view. हमें फ्रंट व्यू में टॉप ड्रॉ करना है या टॉप व्यू में ड्रॉ करना है, ये पॉइंट डिसाइड करना है. And I have told n number of times, when your object is in HP, you will have to start from below XY line. And when your object is in VP, we will have to start from above XY line. Now you tell me, this equilateral triangle of 50 mm side lying in HP or in VP? In HP. Yes, in HP. So it is lying in HP. It has clear meaning that you will have to start drawing it below XY line. Am I correct? So what we will do, we will draw one line below XY perpendicular to this XY line. और क्या रखा है HP में ट्रायंगल का? 50 side mm. एज AB रखा है. Okay. Problem is given in front of you. You will have to read it and you will have to use the correct terminology. Edge AB is kept in a HP which has 50 mm dimension. Okay, उसका dimension कितना है? 50 mm है. So I'll draw a line of 50 mm over here. Before that, I want to tell you कि यहां हमें S solution साइड को निकाल के मैं रखता हूं, so that it will be clearly understood by you what we will have to do, which step we will have to follow.
Now, first thing we have completed, means we are completing, yet it is not finished. So we'll have to provide the names. This point is A and this point is B. What is its side? It is 50 mm. So you will have to provide the dimensions. ये कॉमन स्टेप है, मैं क्या निकाल रहा हूं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप सबको अब ये ड्रॉ करना आना चाहिए. दिस साइड इज 50 mm. Now take the distance of AB in your compass and try to mark one point, which is point C over here. In this way, and then complete your triangle. This will be your point C. It means the first view is completed. अब मुझे बताइए सेकंड व्यू कहां ड्रॉ करना है मुझे? फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है ऑन XY. ओके, तो ये आ गया ऑन XY सेकंड व्यू. यहां आ गया मेरा सेकंड व्यू. फ्रंट व्यू क्या आएगा? लाइन आएगी. एंड हाउ टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन? C से एक प्रोजेक्टर मैं ऊपर ले जाऊंगा. ओके, एंड आई विल ड्रॉ अ लाइन. In this way, and I will name it. The first point is A dash, B dash, and the next point is C dash. So this is my first stage. Okay, अगर आपने प्रॉब्लम में इतना ड्रॉ कर दिया, अगर पेपर ऑफलाइन होता था तब की बात करता हूं मैं, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. नेक्स्ट, अब मुझे तीसरा व्यू कहां ड्रॉ करना है? अबव XY लाइन और बिलो XY लाइन? फ्रंट व्यू अबव XY लाइन. Absolutely correct. Front view above XY line I need to draw here. Above XY line यानी कि इंक्लिनेशन above XY line मुझे लेना है. तो above XY line का जो इंक्लिनेशन होता है वो इंक्लिनेशन विथ HP होता है या VP होता है? इंक्लिनेशन विथ HP. HP. और HP का इंक्लिनेशन यहाँ कितना दिया हुआ है? 45. Yes. 45. Theta, yes, theta is given how much? 45 degree. 45 डिग्री का थीटा हमें दिया हुआ है. Okay, so what I will do, I'll draw a line of 45 degree. And I will mark A dash, B dash and C dash distance on that particular line.
A dash, B dash, and the end point C dash. तो थीटा 45 मैंने ऊपर लिख लिया है, तो जस्ट आई विल राइट हियर थीटा. Okay, and then the next view is my fourth. Projector below XY line. Yes, fourth view. Fourth view means I will have to complete the top view, and to complete this top view, what I will do, I will mark the projector of A dash B dash. देखिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं प्रोजेक्टर को, सिर्फ स्ट्रेट लाइन जहां तक आपका डायग्राम का एंड पॉइंट है वहां तक, एंड दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ सी. and locus of point A, locus of point B, and locus of point C. And I will mark the points in a top view. टॉप व्यू में मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं A, B, and this is the C. I will make this triangle visible, means I will make it dark. तो A से B तक, B से C तक, और C से फिर B तक, this triangle I have completed. Okay, everybody, up to this second stage, have you drawn it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now my friend, we will have to draw next view, that is inclination with VP in a fifth stage, यानी below XY line. Below XY line मुझे क्या करना है, अब एंगल ड्रॉ करना है, और वो एंगल XY लाइन के नीचे का एंगल है. तो XY लाइन के नीचे का एंगल जो रहता है, जो होता है, उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? VP का एंगल कहते हैं, फाई एंगल कहते हैं. यानी इन्होंने मुझे फाई एंगल दिया है. बट I want to fetch your concentration on one very important sentence. And what is that sentence? कि पहले जो हमने प्रॉब्लम देखे थे उसमें हम क्या करते थे, फिफ्थ स्टेज में इंक्लिनेशन विथ वीपी ड्रॉ कर देते थे, और ये जो डायग्राम है वो रीड्रॉ कर देते थे. एम आई करेक्ट? Yes, sir. यहां हम फाई एंगल डाल देते थे, और इस फाई एंगल पे हम ट्रायंगल बना देते थे ऐसा, राइट? जहां मुझे ए पॉइंट यहां मिलता था और बी पॉइंट यहां मिलता था. एम आई करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, और इसके प्रोजेक्शन मैंने ऊपर ले लिए और लोकस ले लिए, तो मेरा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता था. बट everybody, you should be very much conscious which thing I am going to tell you. तो मुझे एक बात आप बताइए कि VP जो है, जो VP का एंगल दिया हुआ है, उस एंगल पे हम प्लेन का कौन सा पार्ट रखते थे? ये आगे की डायग्राम देख के बताइए आप की आपण प्लेनचा कुठला भाग त्या अँगलवर ठेवत होतो? कुठली लाईन आपण त्या अँगलवर ठेवलेली आहे?
ए बी। ए बी बरोबर। इट मींस हमने ए बी लाइन इस एंगल पे रखी हुई है, और आप देख सकते हैं कि वही ए बी लाइन एचपी में आपने परपेंडिकुलर की है, वही ए बी लाइन सेकंड स्टेज में आपने ड्रॉ की है, और ये सेकंड स्टेज की ए बी लाइन हम यहां रखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो फर्स्ट स्टेज है या ये सेकंड स्टेज है, इन दोनों में आपकी जो ए बी लाइन है वो ए बी लाइन रिड्यूस्ड होती है या नहीं होती है? नहीं। नहीं होती है। अब तक आपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उन सभी प्रॉब्लम में हमने जो साइड यहां ए बी में रखी थी वही साइड फाई एंगल में, या अगर एंगल फाइनल का ऊपर हो तो थीटा एंगल में हमने रखी हुई थी। डू यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं ये अंडरस्टैंड हो गया क्या सबको? मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हमने पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और उसमें जो साइड हमने एचपी में या वीपी में रखी थी वही साइड फाइनल स्टेज में हम फाइनल एंगल पे रखते हैं, और वो जो साइड है वो चेंज नहीं होती है। आप पहले के जो प्रॉब्लम आपके नोटबुक में है वो देख लीजिए। यहां अगर साइड ए बी है तो हमने यहां ए बी रखा है। ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, हमने जहां अगर साइड यहां है तो यहां भी हमने साइड ही रखी है। ओके, और वो साइड जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सेम डायमेंशन दिखाती है। यहां भी 50 है और यहां भी वो डेफिनेटली 50 होगी, तो थर्ड स्टेज में भी वो 50 ही होनी चाहिए, और होती है। हमने पहले सभी प्रॉब्लम इसी स्टाइल से ड्रॉ किए हैं। बट नाउ इन दिस प्रॉब्लम यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थर्ड स्टेज में क्या इंक्लिनेशन दिया है। थर्ड स्टेज में उन्होंने कहा है द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर विच इज इन फ्रंट ऑफ साइड ए बी इज इंक्लाइन टू वीपी बाय 30 डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहता हूं द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, कॉर्नर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर, कॉर्नर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर विच इज इन फ्रंट ऑफ साइड ए बी। तो साइड ए बी के सामने कौन सा कॉर्नर है? साइड ए बी के सामने कौन सा कॉर्नर है? सर आवाज है? आवाज नाही येत येत सर. नाही येत सर आवाज. हेलो हेलो। Yes. येतो सर. यस सर. ओके 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 यस सर. यस। तो मैं ये बात बताना चाहता था कि यहां क्या लिखा है द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर विच इज इन फ्रंट ऑफ साइड ए बी। अब ये साइड ए बी कहां है? यहां साइड ए बी है। ओके, और उसके सामने का कॉर्नर कौन सा है? डायग्राम में है ना, साइड ए बी, दिस इज साइड ए बी,
इसके सामने का कॉर्नर C, एंड द परपेंडिकुलर विच इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉर्नर इज दिस वन. ओके, हम इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम देंगे D. हम इसे क्या नाम देंगे? D. यानी कि ये जो CD लाइन है, ये CD लाइन थर्ड स्टेज में इंक्लाइंड है. आपको बात समझ में आ गई सबको? हेलो, इन्होंने क्या लिखा है पढ़ लीजिए. द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, इसके सामने का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर, इट इज इंक्लाइंड टू VP बाय 30 डिग्री. ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर 30 डिग्री को इंक्लाइंड है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस. ये जो CD लाइन है, वो CD लाइन इंक्लाइंड है, यहां AB लाइन नहीं है. ये बात आप समझ लीजिए. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर विच इज इन फ्रंट ऑफ साइड AB? आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या? आई एम आस्किंग यू एंड आई एम इन नीड ऑफ योर रिप्लाई, अदरवाइज आई कांट गो अहेड. यस सर. यस सर. तो C पॉइंट से, यानी कि उसके AB साइड के जो फ्रंट वाला कॉर्नर है, उससे पास होता हुआ ये परपेंडिकुलर है CD. ओके, तो अब पहली केस फिर से मैं दोहराता हूं कि जहां आप साइड AB इंक्लाइंड करते थे, तो आपका जो AB है वो पहले स्टेज में जो था वही दूसरे स्टेज में हुआ करता था, वो चेंज नहीं होता. देखिए AB यहां पहले में 50 है, सेकंड में भी वो 50 ही है, वो चेंज नहीं होता था, इसलिए हमने वो एज इट इज लिया था. लेकिन यहां अगर आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा कि पहले जो CD है, ओके, उस CD की लेंथ कितनी है? आपने अभी ड्रॉ किया होगा. व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD? 30 mm. 30 mm. और जब आप इंक्लिनेशन विथ HP करते हो तो वो जो CD है वो रिड्यूस हो जाता है, वो अपरेंट हो जाता है. एम आई करेक्ट? यस सर. तो अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? लेंथ मस्ट बी रिड्यूस. कितनी? 30 है. 30. सर रिड्यूस्ड 30 है. Okay, the reduced length is 30 and original length is how much? 80. 80? 43 sir. 43. 42. Yes. Means I want to tell you that कि तीसरे स्टेज में मुझे जो पार्ट इंक्लाइंड करना है उसकी लेंथ तो बदलती है. पहले मैंने जो भी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व किए हैं उसमें जो पार्ट थर्ड स्टेज में इंक्लाइंड था उसकी लेंथ एज इट इज रहती थी. लेकिन यहां जो लेंथ मुझे थर्ड स्टेज में इंक्लाइंड करनी है, मला जी डायग्रामची जी लांबी आहे, जी तिसऱ्या स्टेज मध्ये इन्क्लाइन्ड करायची आहे, ती बदलते इथं. वो थर्ड स्टेज में मैं जो लेंथ रखने वाला हूं वो यहां चेंज होती है. और आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब आपकी जो लेंथ, जो बॉडी पार्ट आप थर्ड स्टेज में रख के उसे इंक्लाइंड करने वाले हो, वो अगर सेकंड स्टेज में चेंज होती हो, वो अगर एपरेंट आती हो, वो अगर कम आती हो, तो हमें एपरेंट एंगल का इस्तेमाल
इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में करना है। हमें क्या करना है, एपरेंट एंगल यहां ड्रॉ करना है। और उन्होंने जो इंक्लिनेशन दिया है वो फाई दिया है, यानी कि उन्होंने ट्रू एंगल दिया है। तो पहले यह बात समझनी जरूरी है कि एपरेंट एंगल का इस्तेमाल कब करना है। उसका आंसर है कि व्हेन इन अ थर्ड स्टेज you want to incline a body part of your plane which is changing its dimension in a second stage। जो बॉडी पार्ट आप थर्ड स्टेज में इंक्लाइंड करना चाहते हो, उसकी अगर लेंथ सेकंड स्टेज में चेंज होती हुई आपको नजर आ गई, तो आपको एपरेंट एंगल का यूज करना है। हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व 2-3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ इट। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, सो जस्ट ट्राई टू कीप इन योर माइंड कि तीसरे व्यू में जो बॉडी पार्ट मुझे इंक्लाइन करना है, उस बॉडी पार्ट का अगर लेंथ सेकंड स्टेज में कम होता हो तो मुझे एपरेंट एंगल यूज करना है। So here we need to use the apparent angle method. Okay, I will give note to you people, don't worry about it. But before that, we will have to understand how to draw the apparent angle of this particular problem. इसलिए मैंने पहले ट्रायंगल का प्रॉब्लम लिया है। ओके, नाउ फाइंड ओपन स्पेस। ओके, यहां एक ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस पे क्या कर दीजिए, एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फेंट लाइन, एवरीबॉडी यू नीड टू ड्रॉ इट विथ मी। फेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उस फेंट लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए। इस फेंट लाइन पे क्या कर दीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए। ओके, और आपका ओरिजिनल एंगल कितना है वीपी के साथ, 30 डिग्री की एक फेंट लाइन बना दीजिए। एक 30 डिग्री की फेंट लाइन बना दीजिए। थर्टी की फेंट लाइन बना दिया आपने? यस सर। यस, एवरीबॉडी? यस सर। या, तो इसे नाम दे दीजिए सी। इसे नाम दे दीजिए सी। और यहां आपके पहले स्टेज में जो सीडी की लेंथ है, पहले के स्टेज में सीडी की लेंथ जो है ट्रू लेंथ, क्योंकि ये जो एंगल है फाई है, ट्रू एंगल है, तो पहले जितना एंगल उन्होंने वीपी में दिया है उतना एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया 30 का, और उस पे ये जो ओरिजिनल स्टेज 1 वाली जो सीडी है उतनी लेंथ कंपास में ले लीजिए। कितना है, 43। कितना है? यस सर। 43, या, एंड मार्क दैट 43 mm ओवर हियर। इस लाइन पे वो पहले स्टेज की जो सीडी है वो मार्क कर दीजिए। यस सर। मार्क कर दिया आपने? यस सर। या, तो फिर इससे
पास होने वाले इस पॉइंट डी पॉइंट से पास होने वाले और एक लोकस निकाल लीजिए। निकाल लिया? हैव यू ड्रॉन द लोकस? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब क्या कीजिएगा, ये जो रिड्यूस्ड सीडी है, एपरेंट सीडी है दूसरे स्टेज में की, उसकी लेंथ कंपास में ले लीजिए। कितना है? 30 mm। और ये जो सेकंड स्टेज में का सीडी है, ये डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। कहां का? ये डिस्टेंस सीडी का, ये Yes, sir. डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। 30 mm तो कुछ तो है, आपने बताया है। एंड नाउ बाय कीपिंग नीडल ऑफ योर कंपास ऑन सी, मार्क ऑन दिस लोकस। वो 30 mm का डिस्टेंस जो है वो इस लोकस पे मार्क कीजिएगा एंड जॉइन दिस लाइन। एंड यहां कौन से स्टेज का डिस्टेंस लेना है? सेकंड स्टेज का डिस्टेंस लेना है। ओके, ले लिया? आपकी लाइन ऐसी आती है 30 mm का लाइन मार्क करने के बाद। Yes. नाउ Yes, sir. मेजर दिस एंगल। Measure this angle. It must be greater than 30. Correct. 30th आहे sir. अरे 30 कसं येणार बाळा? 30 42. हा 30 आधीचा अँगल घेतलेला आहे आपण, त्याच्यापेक्षा जास्तच येणार ना अँगल, लेंथ कमी केली म्हणल्यानंतर 30 कशी काय येणार? How much is this second angle which I have denoted with the black line? 44. 42. 42. 42. Okay. 44. Okay. So it will be in between 42 to 44. Okay. कुछ लोगों की 42 आएगी, कुछ लोगों की 43 आएगी, कुछ लोगों की 44 आएगी, 45 भी आ सकती है। ओके, तो ये जो एंगल है, अंडरस्टैंड, दिस लेंथ इज रिड्यूस्ड लेंथ। ये जो 30 mm की लेंथ है वो है आपकी रिड्यूस्ड लेंथ। तो रिड्यूस्ड लेंथ को हम एपरेंट लेंथ भी कहते हैं। तो ये जो एंगल आपका आया है वो एपरेंट एंगल आया है, और XY लाइन के नीचे का जो एपरेंट एंगल होता है वो एपरेंट एंगल हम बीटा के नाम से जानते हैं। तो हियर यू विल हैव टू यूज द एपरेंट एंगल which is nothing but beta is equal to, I'll take it as a 43 डिग्री। मैं ये बीटा एंगल कितना लेता हूं? 43 डिग्री लेता हूं, 43 डिग्री लेता हूं। ओके, नाउ आपका बीटा एंगल आपने ड्रॉ कर दिया है। यहां ये मेथड आपके समझ में आ गई कि पहले ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले स्टेज की लेंथ ओरिजिनल इंक्लिनेशन जितना दिया है वीपी में या एचपी में, उस पे मार्क करनी है। ये सब थर्ड स्टेज के लिए करना है। और फिर ये जो रिड्यूस्ड लेंथ है वो उसके लोकस पे मार्क करनी है, और आपको जो एंगल मिलेगा दैट एंगल विल बी योर बीटा एंगल, या वो आपका अल्फा एंगल होगा। नाउ दैट एंगल वी हैव डिसाइडेड, इट इज 43 डिग्री। Okay, so now what you will have to do, you will have to draw an angle of 43 degree over here। 44 हो तो 44 ड्रॉ कीजिए, 42 है तो 42 ड्रॉ कीजिए। ओके, सो इट इज 44 डिग्री।
So I'll draw the angle and I will write here this is nothing but my beta angle. तो यहाँ फाई वीपी में उन्होंने फाई दिया है, लेकिन हम फाई नहीं ले सकते क्योंकि जो पार्ट वीपी में इंक्लाइनड है वो रिड्यूस्ड होता है सेकंड स्टेज में। इसके पहले से हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वहां एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ होता है और यहाँ हमें ये अपरेंट एंगल मेथड यूज करनी पड़ती है। नाउ रिमेनिंग वर्क इज सेम लाइक आवर यूजुअल प्रॉब्लम। ये हमें यहाँ रीड्रॉ करना है, ओके और रीड्रॉ कैसे करना है, इस लाइन पे सीडी आनी चाहिए, ओके। So first of all, what we will do, we will take one point over here and we will name that point as a point C. इस पॉइंट को हम C नाम देंगे। इस C से हम क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे। ओके और C के नीचे का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस हम यहां मार्क कर लेंगे। यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। नाउ अब ये जो C पॉइंट है उसके ऊपर का डिस्टेंस लेंगे और नीचे का डिस्टेंस लेंगे। ये ऊपर का डिस्टेंस और ये नीचे का डिस्टेंस, और इस लाइन से हम यहां और यहां ड्रॉ कर देंगे। तो ये आ गया यहां और ये आ गया यहां, okay. Now we will provide the name to it. This is point A, this is point B, and we will draw triangle over here. ये हमने क्या किया है, रीड्रॉ किया है यहाँ। तो C से ये A पॉइंट, A से ये B पॉइंट, C से ये B पॉइंट हमें यहां ड्रॉ करना है। आप यहां ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। C पॉइंट आप नीचे भी ले सकते हैं या ऊपर भी ले सकते हैं, दैट इज योर फ्रीडम। C पॉइंट आप कहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नाउ you need to take its a projection upward. ये जो C पॉइंट है ये ऊपर ले लिया, A पॉइंट है इसको ऊपर ले लिया, और ये जो B पॉइंट है इसको भी ऊपर ले लिया, and I have taken locus of C. Now I will have to set the front view point. यहाँ D पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि एग्जामिनर को ये दिख गया है कि C से पॉइंट पास होता हुआ परपेंडिकुलर आपने इंक्लाइंड कर लिया है। Now here we will have to put the name of AB points. So यहाँ A dash ये पॉइंट हो गया आपका B डैश, और ये एंड का पॉइंट हो गया आपका C डैश। अगर आपने C नीचे ले लिया तो C का पॉइंट इस राइट साइड को आएगा। अगर C पॉइंट नीचे ले लिया और AB लाइन ऊपर ले ली तो C पॉइंट आपका इस साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में। अब हमने C पॉइंट ऊपर ले लिया है, XY लाइन के क्लोज ले लिया है, तो हमारा C पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को आएगा। And we can
join it. ये A और B XY लाइन पे ही है. B और C और A. दिस इज द एपरेंट एंगल मेथड, जहां आपको सिर्फ थर्ड स्टेज में कंस्ट्रक्शन करके लेना है. ओके, थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करके आपको ये जो एपरेंट एंगल है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, और वो एपरेंट एंगल लेके आपको प्रोजेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है. तो सिर्फ थर्ड स्टेज में यहां चेंज होता है. ओके, तो एग्जामिनेशन में तो आपको ऑफलाइन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपरेंट एंगल हम कब यूज करते हैं. ओके, so take a note. Have you completed it? Have you completed it? Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Take a note. Take a note. Take a note. First point, when apparent angle method, when apparent angle method have to be used, when apparent angle method have to be used. Okay, just a minute. Write down apparent angle method have to be applied apparent angle method have to be applied in third stage of plane problem, when the part of object which is inclined in a last stage inclined in a last stage, that is third stage, is getting reduced and provide apparent dimension
apparent dimension in second stage in second stage then apparent angle method have to be used procedure number 1, take a point procedure. Take a point, draw the given inclination, draw the given true inclination, draw the given true inclination from that point, okay. Number 2, mark the original length, in bracket from stage 1 on that given angle, next line. Draw a locus through end point, draw locus through that end point. Then take the reduced distance, take the reduced distance, just a minute, take the reduced distance
आवाज येत नाही सर. देन काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला? Take the reduced distance. Reduce the distance from stage 2 of object part and mark from same initial point on that locus join the line and measure join the line and measure this angle as apparent angle. Mark this angle and complete the procedure as previous. Okay, so we have solved the first problem over here only, and in future we will solve 2-3 problems of this type, and this thing will be more clear to you people. Okay, thank you very much. I'll stop here. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye.